Hello and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Bachelor's in Computer Science, second year, semester 4, Data Structures. We are learning queues and today we are going to learn the algorithm to delete an element from a circular queue. The name of the algorithm is CQ delete. The name of an algorithm should always be a relevant name followed by the parameters required to the algorithm. So the parameters are queue, front, rear, item, max queue. 5 parameters will be required. Obvious, if you are trying to delete an element from a queue, you require a queue, that too in the form of an array. Front, because we are learning array implementation. Front will be the position of the front item in the circular queue. Rear will denote the position of the rear item in the circular queue. Item contains an item deleted from the front of circular queue. And max queue is the maximum number of items. Okay, so max queue is the maximum number of items that your array, that is your queue, can hold. An item is that particular item which you will be deleting from a circular queue. So very first thing you are going to check whether your queue is empty. Now if front is null means what? There is nothing in the queue. So your queue is empty. And can you delete anything from an empty queue? No. So it's an underflow condition. The queue is empty. Return endf. Okay. Similarly, they are trying to explain it through an example also here. Before execution, your queue looks like this. 1, 2, 3, 4, 5. And 5 locations. And front is 0. Rear is 0. So there is nothing in your queue. And after execution, a message queue is empty, because if there is nothing in the queue, you cannot delete anything from the queue. Okay, so this is your first step. Next, if queue is not empty, if this condition fails, then you have something in the queue, maybe just one element, but you have something in the queue. So just remove that item. How are you going to remove an element from a queue? The deletion in a queue always takes place at the front location. So queue के front में जो कुछ भी है उसको item में डाल दीजिए. Just put that item, just shift that value from front of the queue to this new variable. This is a variable that is going to hold the deleted element. So queue of front में whatever is there, what you just shift it to variable item. How? Again you have a explanation to this. See, before execution your queue is looking like D, F, A, B, C, and front is 3 and rear is 2. That means A is your front element, B is your second, third, and now because it's a circular queue, fourth element यहाँ है और F आपका fifth element है. Now you are trying to delete an element. Which element will be deleted? The front element, that is A, will be deleted. So the queue looks like this. Now the new front is 4 and rear is 2. Now B becomes the new front and D is your end. Okay, that is rear. Now this is if you have any number of elements in the queue. But if you, in case you have only one element in your queue, then that element is at the front location also and rear. वही location front भी है, वही rear भी है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि if front is equal to rear, तो front भी null है और rear भी null हो जाएगा. Front और rear दोनों अगर same हैं, that means आपके queue में एक ही element है. और वो भी एक एलिमेंट अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपका फ्रंट भी नल हो जाएगा, रेयर भी नल हो जाएगा. एल्स नया फ्रंट होता है फ्रंट मॉड मैक्स क्यू प्लस 1. ठीक है, तो अगेन वी विल सी दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल. देखो थर्ड में एग्जीक्यूशन में इफ़ यू डू नॉट हैव सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट तो सिंपल है ना कि फ्रंट इज इक्वल टू रेयर. एक ही एलिमेंट था, डिलीट कर दिया, फ्रंट को नल कर दिया, रेयर. अब हम एल्स पार्ट देखते हैं कि समझो एक एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट नहीं है, तो डिलीशन तो ऐसे हो जाएगा, बट नया फ्रंट कैसे निकलता है? नया फ्रंट होता है फ्रंट मॉड मैक्स क्यू.
तो जैसे यहाँ पे अगर ए फ्रंट है, 5 इज योर फ्रंट, दैट मीन्स ए योर फ्रंट, दैट यू डिलीटेड. सो न्यू फ्रंट बाय डिफॉल्ट हमें पता है क्योंकि छोटा सा क्यू है, द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन डायरेक्टली से कि नया फ्रंट बी है. बट नहीं, ऐसे नहीं होता कि यू लुक एट द क्यू एंड यू से कि ये न्यू फ्रंट है. यू हैव अ प्रॉपर फॉर्मूला टू डू दैट. सो योर न्यू फ्रंट इज फ्रंट मॉड मैक्स क्यू. तो फ्रंट क्या है 5, मैक्स क्यू क्या है 5. तो 5 मॉड 5 क्या होता है पहले बताओ. 5 मॉड 5 इज 0 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1. तो नया फ्रंट आपका 1 हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, अगेन आई विल रिपीट इट. देखो यहाँ पे फ्रंट 5 था, यहाँ पे रेयर 2 था. कंडीशन ये है कि इफ़ वी हैव ओनली 1 आइटम तो ये दैट इज़ वेरी सिंपल. बट इफ़ यू डोंट हैव 1 आइटम, मोर देन 1 आइटम, तो क्यू के फ्रंट में जो कुछ भी है वो तो अपने आइटम में ऑलरेडी डाल दिया है. अब आपको चेक करना है कि फ्रंट नया फ्रंट कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पे फ्रंट इज़ 5, रेयर इज़ 2. ठीक है, डिलीशन हो गया. अब पता करना है कि न्यू फ्रंट कौन बनेगा क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है. तो न्यू फ्रंट विल बी फ्रंट मॉड मैक्स क्यू प्लस 1. तो फ्रंट क्या था ए 5 पोजीशन पे, मैक्स क्यू क्या है 5. 5 मॉड 5 क्या होता है 0, 0 प्लस 1 क्या होता है 1. तो 1 इज योर न्यू फ्रंट. अंडरस्टूड. दिस इज फ्रंट मॉड मैक्स क्यू क्यों है. इन केस ऑफ डिलीशन नया फ्रंट निकलता है क्योंकि फ्रंट अपडेट होगा. डिलीशन कहाँ होता है फ्रंट पे होता है, इसलिए डिलीशन के टाइम पे फ्रंट अपडेट होता है. बट अगर इंसर्शन जब हमने पढ़ा तो इंसर्शन टेक्स प्लेस एट द रेयर एंड, तो रेयर अपडेट होता है. उसका फॉर्मूला क्या है रेयर मॉड मैक्स क्यू. सी दैट वाज द एग्जाम्पल. यहाँ का कुछ हाँ ये कल देखा था. तो अज्यूम मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्यू इज 5. वन वुड लाइक टू इंसर्ट एन एलिमेंट से एफ. फाइंड द पोजिशन ऑफ द फॉलो इन अ सर्कुलर क्यू. इंसर्शन कहाँ टेक प्लेस करता है रेयर पे. तो जब इंसर्शन होगा तो रेयर अपडेट होगा, जब डिलीशन होगा तो फ्रंट अपडेट होगा. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला फ्रंट 4 है रेयर 3 है. फ्रंट 4 है रेयर 3 है. तो अब जब ये इंसर्शन करना है हमें एफ, तो कैसे करेंगे. ऐसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, नया रेयर निकालना पड़ेगा और फिर जब नया रेयर निकलेगा तब उस नई रेयर पोजीशन पे इंसर्शन होगा. तो नया रेयर निकालने का फॉर्मूला है रेयर मॉड मैक्स क्यू प्लस 1. नया फ्रंट निकालने का फॉर्मूला है फ्रंट मॉड मैक्स क्यू प्लस 1. ठीक है, तो रेयर मॉड मैक्स क्यू प्लस 1 कितना हो रहा है. रेयर यहाँ पे क्या था, व्हाट वाज द रेयर इन दिस एग्जाम्पल 3 एंड व्हाट वाज द फ्रंट 4. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल रेयर की वैल्यू है 3, मैक्स क्यू की वैल्यू है 5. 3 मॉड 5 कितना होता है 3 होता है. प्लस 1 करेंगे आंसर 4 आएगा. दैट मीन्स नया रेयर आपका 4 है. बट वन कैन नॉट ऐड एन आइटम एट पोजिशन 4 बिकॉज फ्रंट इक्वल्स टू रेयर एंड हेंस ओवरफ्लो. और यहाँ पे आप 4th लोकेशन पे फ्रंट है, ऑलरेडी एलिमेंट रखा हुआ है, तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाती है. बट फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन एवर यू आर डूइंग इंसर्शन यू डू इंसर्शन एट अ रेयर एंड. तो जब तक रेयर नहीं है उसमें इंसर्शन कैसे होगा. पुराने रेयर पे तो ऑलरेडी डेटा है, मतलब पहले रेयर को अपडेट करो और फिर उस पर इंसर्शन करो. डिलीशन के टाइम पे क्या होता है, डिलीशन तो डायरेक्टली फ्रंट से हो जाता है. बट नया फ्रंट निकालने के लिए यू हैव एन ऑप्शन कि यू विल राइट फ्रंट मॉड मैक्स क्यू प्लस 1. और वो भी तब जब मोर देन 1 एलिमेंट है. एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट एक ही एलिमेंट था, डिलीट हो गया, फ्रंट भी नल हो गया, रेयर भी नल हो गया. सो इट्स सो सिंपल. ओके, so this is it. And next is an algo to count number of elements in a circular queue. How many elements are there in your queue? To count that you have an algorithm. ठीक है, see where q is your name of an array, front position of the front item in the circular queue, rear position of the rear item in the circular queue, and max q is the maximum number of items. This algorithm is basically used to count the number of elements in circular queue. So the name of the algorithm is written as numq. 4 parameters will be required. q obviously लगेगा, front लगेगा, rear लगेगा और max q लगेगा. अब पहला पॉइंट वही है कि फ्रंट अगर नल है और रेयर नल है तो 0 एलिमेंट है. हम क्या कर रहे हैं इस एल्गो में हम प्रॉपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं सर्कुलर क्यू में. ठीक है, तो इफ फ्रंट इज नल एंड रेयर इज नल देन 0 एलिमेंट्स आर देयर इन योर क्यू. खत्म, रिटर्न एंड इफ.
बट ये एक केस हुआ, बट ऐसा नहीं है। फ्रंट इज समथिंग लेस देन रेयर, ठीक है, फ्रंट इज लेस देन रेयर। फ्रंट अगर 2 है तो रेयर 2 से ज़्यादा है, तो रेयर में से फ्रंट को माइनस करो, +1 करो, उतने एलिमेंट्स हैं आपके सर्कुलर क्यूब में, ठीक है। इसका भी एक प्रॉपर एग्जांपल से ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, पहले आप देख लीजिए। जैसे कि अगर फ्रंट 2 है, रेयर 4 है, तो 2 पे एक एलिमेंट है, 3 पे एक एलिमेंट है, 4 पे एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है। तो फॉर्मूला कैसा हो रहा है, रेयर माइनस फ्रंट 2 मिलेगा, 4 - 2 2 +1, तो रेयर माइनस फ्रंट +1 इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। यहाँ पे कभी कभी सर्कुलर फैशन में घूमते घूमते कभी कभी रेयर छोटा हो जाता है और फ्रंट बड़ा हो जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, रेयर 3 था और फ्रंट 4 था। ये सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर फैशन में फ्रंट इधर उधर जाते जाते रेयर इधर आ गया, तो रेयर इज स्मॉलर देन फ्रंट, नॉट फ्रंट इज स्मॉलर देन रेयर। सो इन दैट केस इफ रेयर इज स्मॉलर देन फ्रंट, तो नया यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्मूला है मैक्स क्यू, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ योर क्यू प्लस द रेयर माइनस फ्रंट +1। तो ये पूरा पोर्शन तो एज इट इज़ यहाँ से लिया हुआ है, बस उसमें मैक्स क्यू वैल्यू ऐड कर देना, समझा। तो जैसे कि अगर सर्कुलर क्यू है और रेयर 2 है और फ्रंट 4 है, तो इसका मतलब और 5 एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स है सर्कुलर फैशन में, ठीक है। तो रेयर इज योर 2 माइनस फ्रंट, 2 - 4 -2 -2 +1 1 और 1 + 5 सॉरी मैक्सिमम क्यू की कैपेसिटी होती है 5 प्लस, अब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, रेयर माइनस फ्रंट +1 एंड दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर circular queue, that too when your rear is smaller than front. Okay, so you will minus your rear from front, you will add 1 and then you will add it to the whole. So we will see this with an example right now, ठीक है। Count the number of elements in the following circular queue. ये देखो, ये एक सर्कुलर क्यू है, यहाँ की फ्रंट वैल्यू 4 है, रेयर वैल्यू 5 है। फ्रंट छोटा है, रेयर बड़ा है, तो रेयर माइनस फ्रंट +1, 5 - 4 +1 दैट इज 1 + 1 2, तो देयर आर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला इफ योर रेयर इज ग्रेटर देन फ्रंट, व्हाट इज द फॉर्मूला इफ योर रेयर इज ग्रेटर देन फ्रंट, इफ योर रेयर इज ग्रेटर देन फ्रंट, रेयर माइनस फ्रंट +1, तो वही यहाँ पे हुआ 5 - 4 +1 दैट इज 2, ठीक है। बट फ्रंट और रेयर सेम है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, रेयर माइनस फ्रंट 0 0 +1 1, एक ही एलिमेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला, रेयर माइनस फ्रंट +1, 4 - 4 +1 0 +1 दैट इज 1 एलिमेंट ओनली। तो ये 2 केसेस समझे। अब थर्ड केस है जहाँ पे रेयर छोटा रहेगा, फ्रंट बड़ा रहेगा। रेयर 3 है, फ्रंट 4 है, जो कि यहाँ का केस था। तो व्हाट विल हैपन, मैक्स क्यू वैल्यू क्या है 5, मैक्स क्यू प्लस रेयर, व्हाट इज द हाउ टू कैलकुलेट व्हेन योर रेयर इज स्मॉलर देन फ्रंट, it is total number of elements is max q plus rear minus front +1, so max q is 5, rear is 3, front is 4 +1, 3 - 4 1 but -1 +1 0, तो max q की वैल्यू क्या होगी 5, यानी सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है 5 एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे करके सॉल्व दिखाएं आपको। देखो मैक्स क्यू की वैल्यू 5 है, प्लस अब रेयर क्या है 3, फ्रंट क्या है 4 और +1 करना है, 3 - 4 -1 +1 0, 5 + 0 5 एलिमेंट्स है हमारे सर्कुलर क्यू में। इसी चीज़ को इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देख लीजिए। इन सर्कुलर क्यू ए सिंस द पोजीशन ऑफ फ्रंट इज लेस देन रेयर, इन दैट केस द फॉर्मूला इज रेयर माइनस फ्रंट +1 दैट इज 5 - 4 +1 2, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। आप इस वाले के लिए भी देख लीजिए, हालांकि क्लियर है रेयर माइनस फ्रंट इज 0 + 1 एलिमेंट बट स्टिल, ठीक है।
So in circular queue B, since the position of front is equal to rear, that is front is equal to rear, total number of elements are calculated by the formula num rear minus front plus 1, 4 minus 4 plus 1, 1. Only one element, and you can see there is only one element. Okay. Last one, that is this queue. क्या करना है? In circular queue C, the position of front is greater than rear, that is front should be greater than rear. Total number of elements are calculated by the following formula: max q plus rear minus front plus 1, 5 plus 3 minus 4 plus 1, and 5. Total number are 5. So this is it for circular queue. In the coming videos we are going to see the D queues, double ended queues. Thank you so much.